کے نام میں آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ عزیزو، ہم 5 ہفتوں تک مسیح محبت کے اظہار اور خود نثاری کے عمال سے پاشکا کے بیدوں کو منانے کی تیاری کرتے رہے ہیں۔ آج یہاں اکٹھے ہو کر دنیا بھر کے تمام مسیحیوں کے ساتھ ہم یہ پاک رسمیں شروع کرتے ہیں۔ مسیح خداوند جشن کے ساتھ اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تاکہ دکھ اٹھا کر اور مر کر اور جی اٹھ کر ہماری نجات کا کام پورا کر دے۔ چاہیے کہ ہم عقیدت کے ساتھ اس واقعے کو یاد کریں اور زندہ ایمان سے اپنے خداوند کے ہمراہ چلیں۔ صلیبی دکھوں میں اس کا ساتھ دے کر ہم اس کے جی اٹھنے اور اس کی نئی زندگی میں بھی شریک ہوں۔ دعا کے لیے سب اپنے سروں کو جھکائیں کیونکہ ٹہنیوں کی برکت چاہی جائے گی۔ اب ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، ان ٹہنیوں کو برکت دے، ان کو پاک کر۔ ہم آج خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ اور بادشاہ ہے۔ بخش دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور اپنی بیت المقدس کی خوشیاں حاصل کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس با مطابق مقدس متی۔ اس وقت جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور کوہ زیتون پر بیت فجا کے پاس آئے، تب یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور ان سے کہا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی تمہیں گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھولو اور میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا، یہ خداوند کو درکار ہے، وہ جلد واپس کر دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے، بیٹی صہیون سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، یعنی بچے بلکہ لدو بچے پر۔ بس شاگرد گئے اور جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ وہ گدھی اور بچے کو لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور وہ اس پر سوار ہوا، اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور ہجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے، اور ہجوم نے کہا کہ یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ جلوس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ سب سے آگے آلٹر سرورز ہوں گے، ان کے پیچھے خواتین سے پیچھے کوائر اور پھر مرد حضرات ہوں گے۔ اوکے سر۔ ماری
50वां बाब उसकी 4 से 7 आयत में है। इस दावत में शायर नबी गमनाक खातिर को पेश करते हैं जो तौहीन से अपना मुंह छुपाता और वो जानता है कि मैं शुक्रियादार ना हूँगा। आए सीसो आज पहली तिलावत में से सुनते हैं। हमारी आज का जुमानी जो है
اگلی رات اس دعوت میں مقدس فارس رسول بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو فروخت کیا اور خدا نے اسے نہایت بلند کیا۔ آئیں عزیزو آج کی دوسری دعوت میں سے سنیں۔ تب یسوع کے ساتھ جسدی باغنا ایک مقام میں آیا اور شاگردوں سے کہا، یہی بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کے ساتھ لے کر غمگین اور سخت بے قرار ہونے لگا۔ تب اس نے ان سے کہا، میری جان میں کی موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے ہو۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر منہ کے بل گرا اور دعا کی اور کہا، اے میرے باپ، اگر دوسرے کے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ تب شاگردوں کے پاس آیا اور انہیں سوتا پایا اور پترس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش نہ پڑے۔ روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر اس نے دوبارہ جا کر دعا کی اور کہا، اے میرے باپ، اگر میرے کیے بغیر تو مجھ سے نہیں کر سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور انہیں چھوڑ کر پھر گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو،
دیکھو وہی آپ ہوتی ہے کہ انسان گناہگاروں میں دعائیں کیا جائے گا. اٹھو چلیے دیکھو میرا پروانی والا نزدیک ہے. یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو یہوذا جو 12 میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ہمراہ ایک بڑا ہجوم تلواریں اور لاشیں لیے سرداروں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے تھا. اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ کہہ کر نشان دیا تھا کہ جسے میں چھوں وہی ہے اسے پکڑ لینا. اور وہی یسوع کے پاس آ کر اس نے کہا اے ربی اسلام، اور اس کو مکرن چوما. یسوع نے اس سے کہا اے میاں تو کہاں تک پہنچا؟ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالے اور اسے پکڑ لیا. اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کے غلام پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا. تب یسوع نے اس سے کہا اپنی تلوار کو اس کی جگہ میں رکھ، کیونکہ وہ سب جو تلوار کھینچتے ہیں تلوار سے ہلاک ہوں گے. کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتا اور وہ فرشتوں کی 12 فرشتوں سے زیادہ کسی کا مجھے دے گا؟ مگر فرشتے کی نیند بننا ضرور ہے، کیسے پورے ہوں گے؟ اسی گھڑی یسوع نے ہجوم سے کہا تم تلواریں اور لاٹیاں لے کر مجھے راہی میں راہ پکڑنے نکلے. میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہ پکڑا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تاکہ میں اپنے جنون سے پورے ہوں. اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے. پر یسوع کے پکڑوانے والے اسے قیافہ کاہن اعظم کے پاس لے گئے جہاں فقیہ اور بزرگ جمع تھے. اور پترس دور دور سے پیچھے پیچھے کاہن اعظم کے محل تک گئے اور اندر جا کر خادموں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا. اور کاہن اعظم اور سب پہلے عدالت عالیہ یسوع پر جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے قتل کریں، مگر نہ پائے کیونکہ بہت سے جھوٹے گواہ حاضر ہوئے. اور آخر کار 2 آئے اور بولے کہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کی ہیکل کو ڈال سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں. تب کاہن اعظم نے اٹھ کر اس سے کہا کیا تو خود جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش رہا. تب کاہن اعظم نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے خدا کا بیٹا تو ہم کو بتا دے. یسوع نے اس سے کہا تو نے خود ہی کہہ دیا ہے، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم نے انسان کو باہر کے دائیں رکھا اور آسمان کے باتوں پر آتا رہے. اس پر کاہن اعظم نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے. اس نے کفر بکا ہے، اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا وہ بدلے کے لائق ہے. تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کو دھول سے مارا. اور دوسروں نے تمانچے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا. جب پترس حسین میں بیٹھا تھا تو ایک لوٹی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا. مگر اس نے سب کے سامنے انکار کر کے کہا میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے. اور جب وہ دروازے کی طرف باہر جانے لگا تو دوسرے نے اسے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا کہ یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا. تب اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو وہاں کھڑے تھے پاس آ کر پترس سے کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی ہی ظاہر کرتی ہے. اس پر وہ لعنت کر کے قسم کھانے لگا. میں اس آدمی کو نہیں جانتا. اور پھر فوراً انہوں نے باندھ دی. تب پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی کہ ملک کے باندھ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا.
और सिपाही जाकर ज़ार रोया। तब सुबह हुई तो सब सरदारान और अवाम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया, इसे कत्ल करें और इसे बांध कर लेकर पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो बचाया और अपनी मसाल सरदार कानून और बुजुर्गों के पास वापस लाया और कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर कत्ल के लिए पकड़वाया। वो बोले, हमें क्या, तू जान। तब वो मसाल हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मगर सरदार कानून ने वो मसाल लेकर कहा, इनको खजाने में डालना लगा नहीं, क्योंकि एक खून की कीमत है। तब उन्होंने मशवरा करके उनसे कुम्हार का खेल पर यीशु के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से आज तक वो खेल खून का खेल कहलाता है। तब नबी का पूरा हो जो ये नबी मार्फत कहा गया है। उन्होंने वो 30 मस्काल लिए, यानी वो लगान जो उस पर लगाया गया, जिन्होंने लगाया वो बनी इस्राएल में से थे, और उनको कुम्हार के खेत के वास्ते दिया, जैसा कि खुदावन ने हुक्म दिया। और यीशु हाकिम के रूबरू खड़ा था और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? फिर यीशु ने उससे कहा, तो खुद ही कहता है। और जब सरदार कानून और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? तब उसने उसे किसी एक बात का भी जवाब न दिया। चनाचा हाकिम नहायत मुताज्जिब हुआ। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर आवाम की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस बराबर नामी एक मशहूर कैदी था। पर जब भी वो इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने हसद से उसे हवाले किया है। और जब वो मसनद अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा, तू इस आस-पास से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में उसके सबब से बहुत दुख उठाया है। फिर सरदार कानून और बुजुर्गों ने अर्जुन को उभारा कि बराबा को मांग ले और यीशु को हलाक कर। और हाकिम ने उनसे तलब करके कहा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, मैं क्या करूं? क्यों? इसने क्या बुरी की है? मगर वो और भी चलाए। उसे तस्लीम की जाए। पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धो और कहा, मैं इस रासवास के खून से पाक हूं, तुम जानो। इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर उसने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। और हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर तमाम रोज के भेंट जमा किया और उसके कपड़े उतार कर उसे गरजी चौका पहना और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसने आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मारकर कहा, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और इस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगा। और जब वो इस पर ठट्ठा कर चुके तो जोगी को लाकर फिर उसी कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले चले। जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नामी एक करवाने आदमी को उठाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। और जब इस मकाम पर पहुंचे जो जिंदा यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है,
तो उन्होंने तब पीली हुई में उसे पीने को दी और उसने जब कर पीना ना चाहा। जब उन्होंने उसे मसरूफ दिया तो उसके कपड़ों को पूरा डालकर बांट दिया। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट दिए और मेरे उल्टे पर पूरा डाला। अब वो वहाँ बैठकर उसकी निगरानी करने लगे और उसका इल्जाम लेकर उसके सिर पर लगा दिया कि ये यहूदी यीशु है, यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ दो डाकू और भी मसरूफ हुए, एक दाएं और एक बाएं। और राह चलने वाले जो पास से गुजरते थे वो सर हला हला कर उसको मलामत करते और कहते थे, वाह, तू जो हैकल को ढाता और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो जमीन पे से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिनों ने भी माँ फकीरों और बुजुर्गों की इकट्ठा मान कर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को बचा नहीं सकता। अगर ये इस्राएल का बादशाह है तो अब सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे। इसका तवक्कुल खुदा पर है। अगर वो इसको चाहता है तो वो इसे बचाए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। और इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसरूफ हुए उसे मलामत करते थे। अब छठी घड़ी से नई घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। नई घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बात ने सुनकर कहा, वो इलियास को बुलाता है। और फिर और उनमें से एक ने दौड़कर स्वयं दिया और सिरके से भरा और सरकने पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जाओ, देखो कि आया इलियास से बचाने आता है। और यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और देखो हैंडल का पड़ना ऊपर से नीचे तक फट गया, 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तड़प गई और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर मुकद्दस शहर में जाकर बखेरों को दिखाई। जब सुबेदार ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे जल्दा और सारा मंजर देखा तो नहायत जल गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा है। और वहाँ बहुत सी औरतें भी थीं जो दूर से देख रही थी और जो जहीर से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आती थी। उनमें मरियम मजदली थी, याकूब और यीशु की माँ मरियम और जबदी के बेटों की माँ। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम के रास्ते गौरवंत आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। इसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। तब पिलातुस ने लाश दे देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश को लेकर साफ कफन चादर में बना और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदाई हुई। और एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लटका कर चला गया। और मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन है, सरदारकानों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, ऐ आका, हमें याद है कि इस अब्बास ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र ही मेरे बाहर की जाए। ऐसा ना हो कि इसके शागिर्द आकर इसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये पिछला फरेब पहले से भी ज्यादा बदतर होगा। तब पिलातुस ने उनसे कहा, तो
तुम्हारे पास पहले वाले हैं, जाओ जिस तरह मुनासिब समझो इसकी निगरानी करो। उन्होंने जाकर उस पत्थर पर मोहर कर दी और पहरा बढ़ाकर निर्वाण किया। वो पहले सुरमा इन्होंने 2011 में एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में कहा था हफ्ता जो है ये रोज़ों के मौसम का रूज है और बाग हफ्ते का जो आगाज है ये बुजुर्गों के द्वार से होता है। जो बुजुर्गों के द्वार की इबादत है इसका आगाज जो है ये 3वीं सदी के आखिर में हुआ। कब हुआ? 3वीं सदी के आखिर में। शुरू में जो यरूशलेम में जो लोग जाते थे वहाँ बैठते दुआ करते गीत गाते प्रोग्राम किया जाता और फिर यीशु का जो शाहाना अंदाज में यरूशलेम में जो दाखिले का जो कलाम का हिस्सा है उसे पढ़ा जाता था। मगर 6वीं और 7वीं सदी में इसे जुलूस की शक्ल में आने के लिए या जुलूस वाला जो हिस्सा है उसको जो है कहने के साथ जो है इसका आगाज हुआ। ये उस वक्त सिर्फ यरूशलेम में होता था, बाकी मुल्कों में नहीं हो रहा था। 8वीं सदी में जो है कलीसिया ने इसे पूरी कलीसिया में पूरी दुनिया में ज़्यादा कलीसिया की इसका हिस्सा बनाया। क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं, एक जुलूस की सूरत में जुलूस के साथ कलाम जो है वहाँ पढ़ा जाएगा, नारे गाते हुए और गीत गाते हुए जो है वो चर्च की तरफ जो है पूरी तरफ जो है वो रवाना होंगे। मुकद्दस इब्राहिम को कहता है हुजूरों का इतवार हमें दावत देता है कि हम यीशु के दुखों में सलीबी रास्ते पर चलते हुए उसकी सलीबी मौत तक वफादार रहें। ये जो है हुजूरों का इतवार जो है वो हमारी मदद करता है ताकि हम यीशु के दुखों में उसके साथ चलने वाले और वफादार रहें। इसलिए मदर टेरेसा जो है उसने ये कहा खुदा ने हमें कामयाब होने के लिए बुलाया है, खुदा ने हमें वफादार होने के लिए बुलाया है। इसलिए आपको याद रखना है कामयाब होने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया लेकिन मगर वफादार होने के लिए बुलाया। फिर जुलूस के इतवार पर जो है वो जुलूस निकाला जाता था। 2 जुलूस उस वक्त निकलते, ठीक है। एक उस वक्त जो जुलूस था जिसको कायने आज़म जिसकी रहनुमाई करता था और वो एक बड़ा लेके आता था। जिस बड़े को कायने आज़म ने फसह की ईद पर कुर्बान करना था उसे 5 दिन पहले जुलूस की सूरत में लेके आते। तो उसका एक तरफ कायने आज़म जो है वो जुलूस की सूरत में आ रहा है, दूसरी तरफ यीशु अपने शागिर्दों के साथ आ रहा है। तो जो कायने आज़म है वो क्या लेके आ रहा है? बरा। इसलिए फसह की इबादत जो है जिसने दिन है उसमें से क्या करे? कुर्बान करे। वो 5 दिन पहले वो इस बड़े को लेकर आ रहा है। 5 दिन जो है फिर 5 दिन के बाद उसे कुर्बान किया जाता है। अगर आज जो है बुजुर्गों का इतवार है उसके बाद 3 से अगर गिनना शुरू करें 3 जो है 1 मंगल 2 बुध 3 जुमेरात और जुमा। इसलिए आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि 2 जुलूस निकले इसको। एक जुलूस में कायने आज़म था और जो है बरा था और उसके साथ लोग भी थे। दूसरे जुलूस में यीशु था, बरा नहीं था। लोग साथ थे, शागिर्द भी थे और लोग भी थे। वो क्या नारे लगा रहे थे? होशाना दाऊद के बेटे की होशाना, वो नारे लगा रहे थे। क्या ख्याल है? इधर कायने आज़म था, इधर कायने आज़म नहीं था। कौन था? यीशु खुद। इधर बरा था, इधर बरा नहीं था। इधर बरा कौन था? यीशु खुद। इसमें मुकद्दस यूहन्ना ने अपने जीवन में बाद से ये लिखा, लेकिन उसने देख उस वक्त किया। उसने अपने जीवन में लिखा, देखो खुदा का बंदा जहान के नाम को
उठाया जाता है। वहाँ यीशु क्रूस में बड़ा भी खुद है और कायने आज़म भी खुद है। वहाँ कायने आज़म में जो है कुर्बान करना है उस बड़े को 5-6 दिन। यहाँ पर ये जो बड़ा भी खुद है कायने आज़म भी खुद है, इसलिए क्या होना है, खुद कुर्बान होना है। इसलिए जो कुछ स्कॉलर्स हैं जो अपनी लिखते हैं वो कहते हैं यीशु जब दाखिल हो रहा था, इसलिए नहीं कि वो यरूशलेम में लोगों को दिखाना चाहता था कि वो जीतता, वो उसकी जीत दिखाना चाहता है, वो इसलिए दाखिल हो रहा था क्योंकि उसने मरना, अपनी मौत दिखानी। अगर आपने गौर किया कि जब वहां से यरूशलेम की सूरत में जो है जो लिबास है कायन का वो भी फर्क है, और जैसे ही दाखिल होते हैं तो लिबास कौन सा हो जाता है, लाल। लाल जो लिबास है उसका दूसरा रंग अगर वो बताएं तो हमारे जेब में बॉर्डर आता है लाल रंग से, क्या है, खून। तो इसलिए जब जैसी चर्च के अंदर दाखिल होते हैं नाम तो जुबान होता है, नाम बैल बुझाई जाती है, नाम लोटिया गाया जाता है, नाम जो है हवीर गाया जाता है, मगर माहौल सीरियस हो जाता है क्योंकि कुर्बान होने की जो है वो बात आ जाती है। तो इसकी बिशप फुल्टन जे सिंह जो है वो अपनी किताब में लिखता है लाइफ ऑफ क्राइस्ट में, वो कहता है हर बच्चा दुनिया में पैदा होता है जिंदा रहने के लिए, मगर यीशु पैदा हो मरने के लिए। इसलिए यीशु जो है जब यरूशलेम में दाखिल होता है अपनी जीत दिखाने के लिए, मगर मरने के लिए। और वो सवाल किस पर होके आता है, सब बोलो किस पर होके आता है। वैसे बादशाह सवाल किस पर होके आते थे, घोड़े पर, गधी के बच्चे पर। इसलिए वो सवाल किस पर होकर आता है, वो गधी के बच्चे पर। गधी का बच्चा हलीम और सादा जानवर है, इस जानवर को ज्यादा गरीब इस्तेमाल करते हैं। कभी देखे किसी अमीर घर के बाहर जगह बता, मैं नहीं करूँगा नाम लेकर करना पाओ, अमीर के घर पर बना हो क्या बताओ, अस्पताल में क्या होते हैं, कभी अस्पताल में गए पर देखा मैंने भी देखा। अमीर के पास इसलिए ये जानवर है, ये गरीब का जानवर है, ये ज्यादा गरीब इस्तेमाल है। ये एक ऐसा जानवर है जो यीशु को लेकर चलता है, इसलिए इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया और बेयर ऑफ क्राइस्ट ना यीशु को लेकर। जो गुरुओं की टहनियाँ हैं इन अलामतों का भी इतने मतलब है, इसके 3-4 मतलब। एक है कामयाबी के नाम, जो बादशाह जब आता था वो घोड़े पर आता था, टहनियाँ उठाई जाती थी ताकि वो ये जानता कि वो कामयाब हो रहा है। दूसरा निशान या उसकी दूसरा मतलब शहादत की अलामत, मुकद्दस जवाब कहता है ये जन्नत की अलामत है, उसे जीवने की अलामत भी कहता है। जब चर्च के अंदर दाखिल हुए, अगर आपने ध्यान गौर किया है तो शायद उनके सहीफे से भी जो हवाला पड़ा गया है वो खुशी का था या दुख का था, वो कौन सा था, दुख का था। की बात अगर बयान जो पढ़ा गया वो क्या है, दुखों का बयान था या खुशी का बयान था, दुखों का बयान पढ़ा गया। इसलिए जो यीशु के जो दुखों का बयान है उसमें अगर हमने गौर किया उसमें बहुत सारी बातें जिन पर गौर किया जा सकता है, लेकिन चल एक बातों को हम देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। एक यहूदा अस्कर युक्ति का यीशु को पकड़वाना या धोखा देना, तो हम इस बात पर जाएंगे तब हम यीशु को धोखा देंगे, तब हम इस तरह की कदम उठाते। हालांकि हमारी ऐसी हम जो है ऐसा करने की हमारी ये नहीं, हम धोखा इरादा नहीं है। कैसे कब हम धोखा नहीं दे सकते। दूसरा पहले जिस पर हम गौर कर सकते हैं, जान कर सकते हैं, वो यीशु के दुख है, यीशु की मौत है, उसका दफनाया जाना है। और बहुत सी बातें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। जैसे एक बात के मुकद्दस लूका के इंजील में और आज की मुकद्दस रसूल के इंजील में वो सूबेदार ने सलीब के पास गए, उसने कहा बेशक ये शख्स ये आदमी रास्तदार है, ये गवाही दे रहा है। सूबेदार ने बहुत सारे लोगों को सलीब दी है, अगर यहाँ पर उसने सलीब के नीचे खड़े होकर उस तरह नहीं देखा जो वहां पहले देता रहा। इसलिए जो
पहले उसने बहुत सारे लोगों को सीख दी है, वो बहुत गुस्से में बुरे अल्फाज बोलते रहे हैं, बुरा कुछ कहते रहे हैं, तो ये सीखा है। लेकिन यहाँ पर इसने जो देखा है वो फर्क वाकई है। इसलिए जो इसने कहा कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। ये उसने क्यों कहा? क्योंकि वो यीशु के दुखों और सीधी मौत में जो खुशियां देख सका, शायद कभी हम भी नहीं देख पाए। फिर इसके अलावा यीशु के दुखों के बयान में जो है वो मुकद्दस पतरस, वो जब खाने में यीशु के साथ है तो वो वफादारी के हवाले से क्या कहता है? आओ हम इसके साथ हम क्या करेंगे? मरेंगे। लेकिन यीशु को पता था कि इसने क्या करना है, क्या करना है? इनकार करना। उसे पता था, उसने बोल भी दिया उसे, देखो 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा। और बाकी शागिर्द भी टेबल पर उसके साथ बैठे हैं, उसे पता है कि ये सब क्या करेंगे? क्या करेंगे? छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे, ये बात करेंगे। जब उसे पता था कि मेरे जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, वो भाग जाएंगे, फिर भी यीशु उनके साथ खाना खाता है, फिर भी उनके साथ बैठता है। अगर हमें पता चल जाए कि जिनके साथ अभी हमने खाना खाना है, जिनको मैं रोज समझ रहा हूँ, बात में कुछ देर बाद मुझे धोखा देंगे, हमें पता हो, तो शायद हम जल्दी के साथ बैठते हैं, नहीं बैठते। हम कोशिश करते हैं किस तरह जो है उनको अवॉइड कर दिया जाए। इसलिए स्कॉलर कह रहे हैं यीशु को पता था कि ये जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, कुछ घंटों के बाद ये मुझे छोड़ देंगे और ये भाग जाएंगे। यीशु उनकी कमजोरी में भी नहीं प्यार करता है, उनकी इस जो है कमी में भी जो है वो प्यार करता है। जब वो यीशु को पकड़ने आते हैं, एक शागिर्द ने क्या किया, एक उनमें से एक सिपाही के काम को क्या किया? काट दिया। इसने क्या किया? उसे बहाल किया, उसे शिफा दी। इसलिए जो स्कॉलर वो कहते हैं यीशु अपने दुख में, अपनी तकलीफ में, अपनी अज़ियत में शिफा दे सकता है, शिफा दे रहा है। ये सूबेदार मुझे भी लग रहा है। फिर इसके अलावा जो पिलातुस के पास से भेजेगा, उसने हेरोदेस के पास भेजा। इन दोनों में आपस में दुश्मनी थी, ये दोस्त नहीं थे, क्योंकि इनमें दुश्मनी थी। लेकिन यहाँ पर जिनकी दोस्ती हो जाती है, अगर लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत और 12वीं आयत पढ़ूंगा। पिलातुस ने ये सुनकर पूछा कि ये क्या ये आपकी जलीली है? जब उसे मालूम हुआ कि हेरोदेस की अमलदारी का है, तो उसे हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों में यरूशलेम में था। और 12वीं आयत में लिखा है, उस दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनके दुश्मनी थी। इसलिए स्कॉलर कहते हैं कि यीशु जो है अपनी अज़ियत और दुख में दूसरों के दरमियान क्या करवा है? सुलह, दुरुस्ती नहीं करवा है। अपनी अज़ियत के दौरान भी वो दुश्मनों के दरमियान सुलह और दोस्ती का सबब बना। हालांकि खुद दुख में से गुजरा है, वो टूटी हुई दोस्ती को बहाल करता है। जब यीशु अपनी सीढ़ी उठाकर जा रहा था, रास्ते में कुछ औरतें पीछे मिलती हैं, तो वो रो रही थी। यीशु क्या करता है उनके लिए? रुकता है और फिर क्या करता है? कहता है पूरा बोल चलेगा, सभी देता है, सब बोलेगा में देता है, सभी देता है। उन्हें जो है कहता है कि मुझ पर नहीं करके अपने आप पर अपने गजब उन्हें सभी देता है। वो शरीर पर लगा हुआ है, वहाँ पर भी वो जो है माफ करता है। तो क्या माफ करता है? सब क्या कहता है? काश हम ये सीख लें। मैं आपको बताऊँ, हमारे घरों, खानदानों, इलाकों में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक लाश कह सके किसी के पास, मैं बाप से माफ करने के लिए नहीं जानता क्या करता है, इसे माफ करने के लिए नहीं जानते कि क्या करती है, ज़्यादा करके माफ करना चाहते हैं। काश हम ये सीख लें। अभी तक हमसे जो है वो सीख नहीं पाए। यीशु जो है बाप से माफ करने की कहते हैं, माफ कर। यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया था अपने सिखाने वाले और दुष्टों के लिए दुआ करो, उन्हें प्यार करो।
अब वो शरीर को उसे पूरा करता है। अगर अपनी इबादत को नबी ने जो उसके 5वें और 7वें आयत में से कहा, मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि जो उसने शरीयत पहले दी है उसको भी पूरा किया, जो शरीयत उसने नई शरीयत दी उसे भी पूरा कर रहा है। ये जो उसने कहा अपने दुश्मनों के लिए, सामने वालों के लिए दुआ करने के हवाले से इसलिए वहाँ पर दुआ करता है, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अज़ियत, दुख और हलाकत मुश्किलात में अपनी बातों और तालीम से, यानी जो उसकी बातें थी, जो उसकी तालीम थी, वो उनसे दूर नहीं हुआ, वो उस पर कायम रहा है। शरीर पर एक डाकू ने दरख्वास्त की थी, क्या दरख्वास्त की थी? जब तो अपनी बात से आए तो मुझे याद करना। यीशु से क्या कहा? इसमें याद करके कि जिन्होंने इसे शरीर दी उन्होंने कहा इसके पास तो कुछ नहीं है, मगर उसके पास जो था उसने उसको दिया, वो क्या है? फिरदौस। फिरदौस का मतलब क्या है दूसरे लोगों ने? इसलिए यीशु हमेशा कसरत से देता है, खुद आसमान और ज़मीन के दरमियान रखता हुआ। लोगों ने सोचा इसके पास कुछ नहीं है, मगर वो कसरत से देता है जो मांगता है, वो कसरत से देता है जो मांगता है। इसलिए जो है हमें ये भी देखना है कि हम मांगते किस तरह है, वो कसरत से देने के लिए प्यार है। अपने दुखों में वो हमें सिखाता है कि दूसरों को प्यार करें और उनकी कमजोरी के साथ। मैंने तेरी में कहा कि बात होगी तो किसी चुनाव के हवाले से बातें होंगी, तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा कि अगर तो आप रिश्ते ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर नहीं मिलते, वो कहाँ मिलते हैं? जैसे कितने जाना है जमीन पे बैठेगा इंसान मिलता है, गुनाहगार नहीं, गलती करने वाले वो मिलेंगे। इसलिए जमीन पर अगर ढूंढना है तो ऐसे इंसान ढूंढेंगे जो गलती करने वाले हैं, जिनसे गलतियां हो जाती हैं, जो कमजोर हैं, उनकी कमजोरियों के साथ हमें चुनाव भी करना पड़ेगा, उनको कबूल भी करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए कि यीशु अपने दुखों में सिखाता है कि दूसरों को प्यार करना है उनकी कमजोरियों के साथ। अपने दुखों में वो सिखाता है कि दूसरों के दुखों तकलीफ में उनका ख्याल रखिएगा। अपने दुखों से वो हमें सिखाता है कि हम सुलह कराने वाले हैं। अपने दुखों से वो हमें सिखाता है कि हम दूसरों को तसल्ली देने वाले हैं। अपने दुखों से वो हमें सिखाता है कि हम अपने दुश्मनों से के लिए प्यार करने वाले और दुआ करने वाले। अपने दुखों से हमें सिखाता है कि हम हमेशा सही रहें। ये सब देखने के बाद सुबह ने कहा था, क्या कहा था? बेशक ये आपकी अगर ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आ रही दूसरे कहना शुरू कर देंगे, बेशक ये मसीह रास्तबाज है, बेशक ये मसीह ईमानदार है, बेशक ये मसीह अपने खुदा से वफादार है, बेशक ये मसीह अपनी कौम के साथ वफादार है। ये कहना शुरू कर देंगे क्योंकि खुदाई कलीसिया के बारे में ये कहा जाता है। खुदा हमें ऐसे करने को भी ये मसीह हमारे खुदा के वसीले से तो करेंगे अपने ईमान का जवाब करेंगे दूसरों का अकीदा दुआ करें आलमगीर कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदावंद अपनी कलीसिया को यीशु मसीह के दुखों पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदाए मेहरबान पापा आज़म बिशप सेवान और तमाम भाइयों के लिए दुआ करें कि मेहरबान खुदा इन्हें हिकमत, धनाई
मुश्किलात और परेशानियों का शिकार है। खुदाए करीम अपने दुखों के फजल से उनकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर करें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें हमारी कुर्बानी की तवार को भी बाप की दोनों कबूल हो। मेहरबान खुदा बख्शते के लिए इजाज़त दे की अज़ीज़त और बहुत मेरे रब को नजर कर दे। हम तेरे कुछ नहीं कर सकते लेकिन हमारे निजात इंसान कामिल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत बनाई हुई अपने कर्म से रोज़ के दावर मुझे हमारे इस्लाम के उसके से आमीन। आपके साथ हो आपके साथ भी हो आप का प्यार लगाएं आमीन। इस्लाम का शुक्र करें। ये बाकी बात को हमारे पास से इस बात नाम हर वक्त हर जगह के लिए कार्य देख रसते का जिक्र अदा करो। वो हम गुनाहों के लिए रुमाना देकर जिसकी मौत से नहीं फरमाता हुआ उसने बढ़कर हमारे गुनाहों की साथ और जीवित करने की दुआ से देख लाया। इसके हम फरिश्ता आसमान से दुआओं का शुक्र के साथ कहते हुए कि हम लोग सदा करते हैं।
धन्यवाद करेंगे तो काइन पाप तुरंत करें तो आप खामोशी के साथ दुआ के पाप को देखेंगे लेकिन कोई जवाब या रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं जब आप मूड को आप प्यारे बुलंद कर रहे हैं तब भी आप खामोश रहिए मेहरबान बाप तू वाकई कदूस है तू पाक है और पाक से खुदी से आती है हमारे दुआएं कबूल कर पाक को भेज काम के ज़राने पाक को कर और हमारे गुलाम किसी का बदन और कुल नहीं इसे रुकराने के लिए चारों तरफ में आप इमान की दुआ करो जी शुक्र किया रोज करो और ये कहकर अपने इशारे को करो इसको मुसार इसमें से लो और खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा इसी तरह उसने खाने के बाद में का प्याला लिया दोबारा शुक्र किया ले कहकर प्याला अपने इशारे को दिया तो तुम उसमें लो और पियो मैं अपनी ऐसी में तुम का प्याला हूँ तुम्हारे के दुआ से लोग इमाम की मौत के लिए बढ़ाया जाएगा मेरी याद में यही किया करो हमारे नौन का भेद
खुदावंद तुझे बदल और क्यों कर लाया ना पास का करने वालों को हमेशा जिंदगी दिलाए जहान के गुलाम को उठाए जाकर वायु में शब्द शरीर से अपने लाए गए लेकिन रोजा खोलने का वक्त नहीं है। सारे रोजे जो है शाम को जो है वक्त के साथ खोलेंगे और जो आखिरी रोजा जो फर्ज है उसे क्या करते हैं पहले खोलेंगे। सारे रोजे से इकट्ठा कर आपकी रोजे को बताएंगे मेहरबानी करके वो रोजा की पूरा शाम तक कर दे तो इससे इबादत को दुआ के बाद ना तो उधर कोई जो है जो नाम लगा नाम रखी है दे शाम को दे दोपहर के वक्त शाम के दे आप जहाँ से उठाएं तो प्यार से क्या कर रहे लोग आजे कि नहीं आ रहे रास्ता आ जाएगा कि ना आ जाएगा तेरे शाम को भी ऊपर होगा तो टाइम में बोलो तो दोपहर में बोल देगा इस तरह ना रहेगी जो वक्त नहीं है क्योंकि इसे हमने इस तरह के राय की उसकी काबिल है खुदावंद आपको बरकत दे खुदावंद आपके साथ हो लगाने के बाद बेटे और की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे हमारी बात की खुशी और इस्लाम की रहे